Hello students, good morning. Playing with numbers, class 6. Today we will discuss first of all the divisibility rules. Means if we have given any number, then we have to examine that the given number is if divisible by 2, then what is the condition? Similarly, any number is divisible by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 11, then what is the conditions? So we will learn some divisibility rule. So first divisibility rule is divisible by 2. If any number, if we have to examine that the given number is divisible by 2 or no, then first of all we will see that in the given number, the if the last digit is 0 or even. 0 or even means if the last digit is 0. For example, if we have a number that is 50, last digit is 0, so it is absolutely divisible by 2. Then if the last digit is 2, 4, 6 or 8, that is even number. For example, if I write 1, 1, 2, the last digit is 2. So without dividing 112 by 2, we can say that 112 is divisible by 2. For example, 5386, the last digit is 6. Again, it is even number. Out of the even number, 2, 4, 6 or 8. So these all number are divisible by 2. So the rule for the divisible by 2, if we have to see, then the last digit should be 0 or any even number. Now second, what is the divisibility rule by 3? If any even number is divisible by 3, then how without dividing we can say that this number is divisible by 3. So if the sum of the digit is divisible by 3, if the sum of the digit, for example, if we take very small example 36, and without dividing, if we have to check that the given number is divisible by 3 or not, so first of all we will sum the digit, that is sum of the digit is 3 plus 6 is equal to 9, and if 9 is divided by 3, then it will be divided by 3 times. So if the sum of the digit is divisible by 3, then the number will be divisible by 3. Next, what is the divisibility rule of 4? If the last two digits of a number are divisible by 4. For example, 100, if we write 136, the last two digit is 36. Last two digit is 36, and 36 is divisible by 4 by 9 times. So 136 will be divisible by 4. Then what is the rule of divisibility by 5? If the last digit is 0 or 5. For example, 100. And if we have to check that the given number 100 is divisible by 5 or not, so last digit अगर 0 है, तो this will be divisible 5. अब जैसे मैं लिखता हूँ 100 के बाद में 105, the last digit is 5, so this 105 is divisible by 5. Similarly, if I write 225, the last digit is 5, so it is divisible by 5. Then what is the divisibility rule of 6? So if the number is divisible by 2 and 3, for example, if I take 12, 12 is also divided by 2, 6 times it will divide. 12 is also divided by 3 4 times, so 12 is divisible by 2 and 3, therefore it will be divisible by 6. One more example, for example, if we take 18, and if you have to check that the 18 is divisible by 6 or not, so first we will divide by 2, it is dividing 2 9 times, then we will divide by 3, it is dividing 6 times. Now this 18 is divisible by 2
and 3. Therefore, it will be divisible by 6 also. So the divisibility rule of 6 is that the given number set should be divisible by 2 as well as by 3. Then divisibility by 8. If the last 3 digits form a number divisible by 8, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो, तो ऐसा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई बड़ा नंबर लेते हैं 250432। अब हमें इतने बड़े नंबर को ये टेस्ट करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखिए, लास्ट 3 डिजिट क्या है 432। 432 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से। आप देखो 432 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, रिमेनिंग 3 and so 32, 8 4 जा 32. So this last 3 digit is if divisible by 8, then the given number will be divisible by 8. Now what is the divisibility rule by 9? If the sum of its digit are divisible by 9, कोई भी नंबर ऐसा है जिसके जो डिजिट है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहे, डिजिट का सम, जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है 55089 और आपको ये टेस्ट करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डिजिट का सम करूंगा। डिजिट क्या क्या है देखो, 5 + 5 + 0 + 8 + 9, तो 5 and 5 10, 10 and plus 8 18, 18 and 9 27, और जो 27 है वो divisible by क्या है 9 है 3 10, so this number will be also divisible by 9. Now the simplest rule divisibility by 10, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से divisible होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 1000, क्या ये 10 से divisible है? यस, लास्ट डिजिट लास्ट में 0, एक 0 कट जाएगा, 100 टाइम divisible होगा। अगर मैं लिखता हूं कि माना 10,000 है तो लास्ट एक 0 कट जाएगा, वो कितना बार हो जाएगा 1000 टाइम डिविजिबल होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी जो नंबर दे रखा है उसके पहले इवन प्लेस पर लाइज करने वाला डिजिट का सम निकालूंगा, फिर ओड प्लेस पे लाइज करने वाले डिजिट का सम निकालूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन 60874, जैसे कोई नंबर है 60874। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इवन प्लेस पे लाइज करने वाले डिजिट, देखो इवन प्लेस पे लाइज करने वाले डिजिट कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट। देखो ये फर्स्ट इवन ओड, फिर इवन ओड और इवन। देखो इवन प्लेस पे कौन कौन से 6 8 4, इनका सब माइनस ओड प्लेस पे 0 + 7, देखो 0 + 7, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 + 4 18, 18 - 7, या तो यहाँ 0 आए या डिविजिबल बाय 11 हो या मल्टीपल और 11 हो, तो अपन क्या करेंगे कि we will say that the given number is divisible by 11. So these are the divisibility rule. All the rules are written in your book also. Please write repeatedly and learn कि if we have to test any given number, whether it is divisible by 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 8 or 9 or 10 or 11, then what are the basic rules? So according to rules, now we will do some more questions in exercise. Please pause the video now.
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस देखने हैं। Which of the following number are divisible by 2? Question number first. Which of the following number are divisible by 2? Question first digit is 206. Then second number is 7018. Then 197. Then 20008. Then 5023, then 148, then 904301. देखिए these are the given number और हमें टेस्ट करना है कि इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 2 तो फॉर द डिविजिबल बाय 2 लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 4 हो या 6, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इन द लास्ट डिजिट जो है किसी भी नंबर का 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, अगर डाउट है तो आप कर ले, अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक नंबर को डिवाइड करके। आपको रूल याद करना। देखो लास्ट डिजिट देखिए आप 6 है, इसमें भी लास्ट डिजिट देखो आउट ऑफ 8 है। यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। फिर लास्ट डिजिट 8 है, ये डिविजिबल बाय 2 है। और इसमें देखो लास्ट डिजिट 3, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। लास्ट डिजिट देखो 0, 2, 4, 6 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए तो ये डिविजिबल बाय क्या होगा 2 होगा। इसका लास्ट डिजिट 1 है तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो द नंबर व्हिच हैविंग लास्ट डिजिट एट last digit is 0, 2, 4, 6 और 8। डिजिट कितना ही गिवन नंबर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको केवल लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई भी इवन नंबर। इवन नंबर कौन से 2, 4, 6, 8 में से। ओके, सो सच नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। तो केवल टेस्ट करके देखना और यस नो में आपको आंसर देना। क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसकी डिविजिबिलिटी का रूल आपको चेक करना है उस रूल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन, which of the following number are divisible by 3? which of the following number are divisible by 3? अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट का क्या करना, सम करना। और डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो लेट अस सी, फर्स्ट नंबर इज 48, सेकंड नंबर इज 594, थर्ड नंबर इज 307, थर्ड नंबर इज 3096, देन 26504, देन 60513। ये आपको गिवन नंबर है और डिविजिबिलिटी रूल कौन सा देखना है, डिविजिबल बाय 3। तो अपन क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट देखो क्या आ रहा है 4 + 8, 4 + 8 कितना है 12 और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा 4 बार। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। आप देखो इसमें भी सम ऑफ डिजिट 5 + 9 + 4, 5 है 9 कितना होगा 14, 14 और 4 18, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार डिवाइड होगा। फिर देखो यहाँ पे 3 + 0 + 7, 3 + 0 + 7 10। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये तो डिविजिबल बाय 3 हो गई नहीं क्योंकि 10 3 का मल्टीपल नहीं है। वैसे देखो 3 + 0 + 9 + 6, देखो 9 3 + 0 0, 0 + 9 12, 12 + 6 18 और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी डिविजिबल बाय क्या है 3 है। देखो नेक्स्ट देखो 2 + 6 + 5 + 0 + 4, 2 and 6 8, 8 and 5, 8 and 5 कितना होगा 13, 13 4 17, 17/3 इज नॉट डिविजिबल बाय 17 में 13 का डिविडेंड नहीं होता है क्योंकि 17 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, केवल डिजिट का सम है। अब देखो लास्ट 609513, 609513। तो 6 + 0 + 9 + 5 + 1 +
3। अब देखो 6 में 0 ऐड करेंगे 6 प्लस 9 कितना है? 6 प्लस 9 इज 15, 15 5 20, 20 and 1 21 and 3 24 और 24 3 का मल्टीपल है, 8 बार डिवाइड होता है ना, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आपको जब भी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल देखना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे और डिजिट का जो सम आ रहा है उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चल pause the video, note down. Now question number 3, अगर रूल आपको परफेक्टली याद है तो आप इजीली कह सकते हैं, which of the following number are divisible by 4। divisible by 4 का क्या रूल पढ़ा था आपने? divisible by 4 में क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो divisible by 4 होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट divisible by 4 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, पहले डिजिट्स, द गिवन डिजिट्स आर, देखो 5 24 पहला नंबर है, दूसरा नंबर इज 9 1 4 है, तीसरा नंबर है आपका 3 5 8 0 2, ठीक है, एंड देन फोर्थ नंबर है 7 1 3 1 6 है, और देन फिफ्थ है आपका 7 1 5 0 एंड सिक्स्थ नंबर इज 8 0 0 1 0 0 8। आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या रूल है, क्या लिखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट should divide by 4। लास्ट के जो 2 डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड होना चाहिए। या देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, 6 बार, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 है। फिर इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, दीज आर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, सो 14 is not divided by 4, 14 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके लास्ट 2 डिजिट देखिए, ये भी 0 2 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब देखो इसके लास्ट 2 डिजिट देखिए, 16 जो है 4 से 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 4। इसके लास्ट 2 डिजिट देखिए, 50 है, 50 इज अगर मैं 50 को 4 से डिवाइड करता हूं तो दिस इज आल्सो 50 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। और इसके लास्ट 2 डिजिट 0 8 है, दैट इज 8 आपका 4 से डिविजिबल है, सो दिस इज आल्सो 4 से डिविजिबल। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या देखना है कि जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. In next video, we will do question number 4 onward. Thank you.